Dear student, today I will be discuss two sub-content of the chapter The Central Islamic Lands. First, religious beliefs of Islam, and second, expansion of Islamic State. The main sources of the history related from the Central Islamic Lands: biographies, chronicles, records of the saying and doing of the Prophet, commentaries on the Quran. Islam was founded in around 612 CE by Prophet Muhammad in this year. He declared himself to be the messenger of God. He preached a new religious doctrine. Those who accepted the doctrine were called as Muslims. All of them were part of a society known as Ummah. Muhammad was an Arab by language and culture and a merchant by profession. An Arab tribe was made up of clans or combinations of large families. It was led by a chief. This chief was chosen partly because of his family connections, but mainly on the basis of his wisdom, personal courage, and generosity. Prophet Muhammad was a merchant who belonged to the Quraysh tribe of Makkah. Kaaba was the cube-like structure which was situated in Makkah. Idols were placed in it. Tribes outside Makkah also consider Makkah as a holy place. That is why they were making annual pilgrimage to the shrine. Religious beliefs of Islam are incorporated in the Holy Quran. Some important beliefs: Allah alone should be worshipped. Man would bear fruit of his deeds on the day of judgment. Each Muslim must follow these 5 principles. First, Allah is the only God and Muhammad is his prophet. Second, he should pay namaz 5 times a day. Third, he should distribute alms to the poor. Fourth, he should keep Roja during the month of Ramjan. And fifth, he must pay a visit to Makkah once in his lifetime, known as Hajj. Some other religious beliefs of Islam: no Muslim should worship idols. He should not indulge in interest making and should abstain from theft. He should follow fixed rules of marriage and divorce. He should believe in equality of people. He should be liberal and full of good qualities. He should consider the Quran as the holy book. Prophet Muhammad's migration from Makkah to Medina with his followers in 622 CE is called Hijrah. The year of his arrival in Medina marked the beginning of the Muslim calendar. This calendar is known as Islamic calendar or the Hijri calendar. The Hijri era was established in 622 CE. The Hijri year is a lunar year of 354 days. It consists of 12 months of 29 or 30 days. Each day starts at sunset and each month starts with the
sighting of the crescent moon. The Hijri year is almost 11 days shorter than the solar year. That is why no Islamic religious festivals, including the Ramzan fast, Eid and Hajj, corresponds in any way to seasons. We can calculate the rough equivalents between the Islamic and the Gregorian Christian years with the formula given by in the box. इस्लामिक क्षेत्रों से संबंधित इतिहास को जानने के कई स्रोत हैं, जिसमें प्रमुख रूप से इतिवृत्त, पैगंबर के कथनों के अभिलेख, कुरान की टीकाएं और जीवन चरित्र प्रमुख हैं। अरब कबीला वंशों से बना होता था। बड़े परिवारों का एक समूह होता था। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख के द्वारा किया जाता था, जिसका चुनाव मुख्यतः व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता तथा उदारता के आधार पर किया जाता था। पैगंबर मोहम्मद एक सौदागर थे, जिनका संबंध मक्का में रहने वाले कुरैश कबीले से था। उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। इस्लाम धर्म की स्थापना लगभग 612 ईस्वी में की गई। इस वर्ष पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया। उन्होंने एक नए धर्म सिद्धांत का प्रचार किया। इस सिद्धांत को स्वीकार करने वाले मुसलमान अथवा मुस्लिम कहलाए। ये सभी लोग एक ऐसे समाज का अंग थे जिसे उम्मा कहा जाता है। काबा मक्का में स्थित एक घनाकार ढांचा था। यह मक्का का मुख्य पवित्र स्थल था। मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे और हर वर्ष यहाँ की धार्मिक यात्रा करते थे। इस्लाम धर्म के धार्मिक विश्वास उनकी पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ में दिए गए हैं, जिसमें से प्रमुख हैं: केवल अल्लाह की ही पूजा की जानी चाहिए। मनुष्य को क़यामत के दिन अर्थात मृत्यु के समय अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। प्रत्येक मुसलमान को 5 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। पहला, अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को जो इस्लाम धर्म से संबंधित है, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। उसे निर्धनों को दान देना चाहिए। तीसरी, चौथी, उसे रमज़ान के महीने में रोज़े रखने चाहिए। और पांचवीं, उसे जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए, जिसे हज के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त और जो धार्मिक विश्वास थे इस्लाम धर्म के, उसमें से प्रमुख हैं: किसी मुसलमान को मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, उसे ब्याज की कमाई नहीं खानी चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए, उसे विवाह और तलाक के निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए, उसे मनुष्य मात्र की समानता में विश्वास रखना चाहिए, उसे उदार और सद्गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए और उसे कुरान को पवित्र ग्रंथ मानना चाहिए। मक्का में समृद्ध लोगों के विरोध के कारण 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मोहम्मद साहब की इस यात्रा को हिजरा के नाम से जाना जाता है। वह जिस वर्ष मदीना पहुँचे, उसी वर्ष से हिजरी कैलेंडर अर्थात मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत हुई। हिजरी सन की स्थापना उमर की खिलाफत के समय की गई थी, जिसका पहला वर्ष 622 ईस्वी में पड़ता था। हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष है, जिसमें 354 दिन, 29 अथवा 30 दिनों के 12 महीने होते हैं। प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय से शुरू होता है और प्रत्येक महीना अर्ध चंद्र के दिन से शुरू होता है। हिजरी वर्ष और सौर वर्ष में अंतर है और हिजरी वर्ष
सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। अतः हिजरी का कोई भी धार्मिक त्यौहार, जिनमें रमज़ान के रोज़े, ईद और हज शामिल हैं, मौसम के अनुरूप नहीं होता। हिजरी कैलेंडरों की तारीखों को ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्थापना की तारीखों के साथ मिलाने का कोई सरल तरीका नहीं है। इस्लामी और ग्रेगोरियन क्रिश्चियन वर्षों के बीच मोटे रूप से समानता की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले से की जा सकती है, जो बॉक्स में दी गई है। आफ्टर मुहम्मद्स डेथ इन 632, no one could legitimately claim to be the next prophet of Islam. As a result, his political authority was transferred to the Ummah with no established principle of succession. After the death of Muhammad, a number of tribes broke away from the Islamic State. Some of them even raised their own prophets to establish communities on the basis of Ummah. The first Khalifa, Abu Bakr, launched a number of campaigns to suppress the revolts. The second Khalifa, Umar, adopted the policy of expansion of the power of Ummah. The Khalifa was aware of the fact that Ummah cannot be maintained with the small income which comes from the trade and taxes. For this, a lot of money was required, which is why the Khalifa and his military commanders mustered their tribal strength so that the lands of Byzantine Empire in the west and Sasanian Empire in the east could be conquered. The Byzantine and Sasanian both empires had huge resources. Christianity was promoted by the Byzantine Empire and Zoroastrianism was patronized by the Sasanian Empire, which was the ancient religion of Iran. On the eve of the Arab invasions, a strength of both of these empires had declined because of the religious conflicts and revolts by the aristocracy. That is why it became very easy for the Arabs to conquer their territories through wars and treaties. Arabs brought Iraq, Syria, Iran and Egypt under the control of Medina with 3 successful campaigns 637 to 642 CE. Arabs became successful because of military strength and strategy, religious and weakness of the opposition. The third Khalifa, Uthman, launched further campaigns to gain control over Central Asia. In this way, just within a decade of the death of Muhammad, the vast territory between the Nile and the Oxus came under control of the Arab Islamic State. These lands maintained under Muslim rule to this day. पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की थी जिसने उनके अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की। उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदल दिया गया ताकि मदीना के बहुदेववादियों और यहूदियों को
पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अधीन लाया जा सके। पैगंबर मोहम्मद ने कर्मकांडों तथा नैतिक सिद्धांतों में वृद्धि की और उन्हें परिष्कृत किया। इस प्रकार उन्होंने धर्म को अपने अनुयायियों के लिए मजबूत बनाया। आरंभ में मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व तथा खैरात कर पर जीवित रहा। इसके अतिरिक्त मुसलमान मक्का के काफिलों और निकट नखलिस्तानों पर छापे भी मारते थे। पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धियों से प्रभावित होकर बहुत से कबीलों ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया और मुस्लिम समाज में शामिल हो गए। इस प्रकार पैगंबर मोहम्मद द्वारा बनाए गए गठजोड़ का प्रचार प्रसार पूरे अरब देश में हो गया। मदीना उभरते हुए इस्लामिक राज्य की प्रशासनिक राजधानी बना और मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए। कुछ कबीलों ने तो उम्मा की तरह ही अपने अलग समाजों की स्थापना करने के लिए स्वयं को पैगंबर बना लिए। पहले खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा इन विद्रोहों को दमन किया। दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता की विस्तार की नीति अपनाई। खलीफा जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली थोड़ी सी आय के बल पर नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए बहुत बड़ी धनराशि की जरूरत होगी। इसीलिए खलीफा और उसके सेनापतियों ने पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य तथा पूर्व में ससानी साम्राज्य प्रदेशों को जीतने के लिए अपने कबीलों को सक्रिय किया। बाइजेंटाइन और ससानी दोनों साम्राज्यों के पास विशाल संसाधन थे। बाइजेंटाइन साम्राज्य ईसाई मत को बढ़ावा देता था और ससानी साम्राज्य ईरान के प्राचीन धर्म जरथ्रोस्ट धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। अरबों के समय में साम्राज्य धार्मिक संघर्षों और अभिजात वर्गों के विद्रोहों के कारण कमजोर हो गए थे। परिणामस्वरूप युद्धों और संधियों द्वारा उन्हें अपने अधीन लाना आसान हो गया। अरबों के 3 सफल अभियानों जो 637 से 642 तक चला में सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र पर मदीना का नियंत्रण स्थापित हो गया। अरबों की सफलता में सामरिक नीति, धार्मिक जोश और विरोधियों की कमजोरियों ने योगदान दिया। तीसरे खलीफा उस्मान ने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए और अभियान चलाए। इस प्रकार पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के केवल 1 दशक के अंदर अरब इस्लामी साम्राज्य ने नील और ऑक्सस के बीच के विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। ये प्रदेश आज तक मुस्लिम शासन के अंतर्गत हैं।